Hello children, after completing the periodic classification, now immediately next chapter is that metal and non-metal, because so many properties, why it has arranged as per the atomic number and all we understood in periodic classification. And in this part, okay, this is new chapter, chapter number 3, metal and non-metal. We will try to understand the properties of metal and non-metal. Okay, so whatever elements are there in nature, initially when there was no classification, periodic classification, at that time broadly it divided like this way only, where this is metal and this is non-metal. But after understanding the periodic classification, now in broad sense, we will try to understand the properties of metal and non-metal. Okay. So, again the same chart I have kept for you. Okay. And this one now I am going to explain you in broad way regarding metal and non-metal. उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. So just see it. इसको आप जरा देखने की कोशिश कीजिए. If you see this children, अगर आप इसको देख पाते हो यहाँ पर modern periodic chart of the element and it is in the long form. Here see different colors are mentioned. Okay, and in that see the metal color. Metal are mostly in purple, light purple. इस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है. Okay. And in that different pattern is mentioned there in metal. See, this is alkaline metal, this is called earth metal, and again it is inner transit. Okay, lanthanide, actinide, all these are metal. Okay, transition metal. Okay, so different types of metals are mentioned there in different color. And similarly in non-metal, see their color. It is in yellow in color, little bluish in color, and then purple in color, or dark, you can say the navy color it is exactly. Okay. If you see it properly, then from hydrogen, helium, okay, these are non-metal. After here, lithium, barium, okay, they have not that much property of metal. Okay, from here, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, all these are non-metal. Again, from sodium, okay, from here, the property of metal started to develop. Sodium, magnesium, both are metal. Aluminium is also metal. But if you move in this side, then silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon, all these are not metal, these are non-metal. So by this you understood, as you move in periodic table from left to right, जैसे आप इधर से इधर जाते हो, metal properties has reduced and non-metal properties has increased. See the fourth number, क्योंकि यहाँ पे total 18 elements हैं, तो potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron means ferrous, cobalt, nickel, copper, zinc, okay, and plumber. This much. All these are metal, and from here again the non-metal has started, and last one is the noble gas. Okay, so this is the basic way to understand the
मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट थिंग इज दैट, इतना पहले हम लोगों को दिमाग में रखना है कि भाई मेटल जो है आपके पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ उनको जगह दी गई है बिकॉज वो अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से बढ़ रहे हैं। एंड अभी आगे जो प्रॉपर्टीज आएंगी एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो दिस मच फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, इतना आपको सबसे पहले समझना है कि मेटल आर रिप्रेजेंट, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सोडियम और मैग्नीशियम, ऑल दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि वो अपने अपने ग्रुप का वहां से प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, एंड दैट्स व्हाई उनको जो है प्रतिनिधि तो तत्व कहा गया है उनको। इज इट क्लियर? तो दिस वन यू हैव टू कीप इन योर माइंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, मेटल प्रॉपर्टीज एंड देन नॉन मेटल प्रॉपर्टीज। ओके, बेसिकली नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर। अब आगे समझते हैं इसको। Now basically till 8th standard mostly we understood the property of metal. Metal are hard, okay, and then metal have the ductile property, malleable property, and metal are the good conductor of heat and electricity. इतना हम लोगों ने पढ़ा था। एंड नॉन मेटल आर अपोज ऑफ दिस। लेकिन जब आप इसको स्टडी करते हो क्या सबके सब इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर हम लोग सबसे पहले मेलेबिलिटी की बात करते हैं तो मेलेबिलिटी के अंदर अगर आप मेटल को देखो तो विच मेटल आर द हार्ड मेटल? दे आर ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, लाइक आयरन। आयरन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। निकल, कॉपर, all these are the property of tin. Okay, all these are the property of malleability. Even silver, gold, okay, all these are the property of malleability. इनके अंदर आपको malleability मतलब इसको आप पीट के पतरा बना सकते हो। Is it clear? लेकिन अगर उसके कंपेयर में अगर आप सोडियम को देखो तो सोडियम को अगर आप देखो तो क्या आप उसको पीट के पतरा बना सकते हो? सोडियम इज सच अ सॉफ्ट मेटल दैट इवन यू कैन कट इट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। हाईली रिएक्टिव, आप ओपन में तो रख ही नहीं सकते हो इसको। इमीडिएटली नॉर्मल टेम्परेचर में केमिकल रिएक्शन एयर से करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज द रीजन वी हैव टू सबमर्ज इट इन केरोसिन। केरोसिन में रखना पड़ता है उसे, क्योंकि बाहर आप इसको ओपन स्पेस में रख ही नहीं सकते हो। इज इट क्लियर? सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सिमिलरली ऑल मेटल आर हार्ड्स? नो, बराबर है। हर किसी में मेलेबल प्रॉपर्टी नहीं है, हर कोई मेटल हार्ड नहीं है। सोडियम, इवन मैग्नीशियम इतना सॉफ्ट है वो, बराबर है, कि आप उसको अगर ओपन एयर में अगर बर्न करना शुरू करो, बराबर है, तो वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा और इमीडिएटली मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है क्रिएट कर देगा। इतना मुलायम है वो, बराबर है। तो वहां पर जो है उसकी जो है मेलेबल प्रॉपर्टी जो है काम में आती नहीं है वहां पर। ओके, उसको पीट के पतरा नहीं बना सकते। इज इट क्लियर? उतना हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट है। लेकिन उसके कंपेयर में अगर आप आयरन वगैरह देखो, दे आर द हार्ड। ओके, उनको पीट के पतरा बनाया जा सकता है। दैट इज द वन प्रॉपर्टी। अनदर प्रॉपर्टी दैट इज द डक्टिलिटी। ओके, खींचकर तार बना सकते हैं। कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑल दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब उसको खींच के तार बना। इवन गोल्ड का तो ऐसा कहा गया है 1 ग्राम गोल्ड से, बराबर है, आप 2 किलोमीटर लंबा वायर, पतला वायर खींच सकते हो। इसका मतलब अगर आप कंजरी चौकड़ी में हनुमान जी के मंदिर में खड़े हो तो वहां से लेकर वो तार कंजरी गांव का जो नाका है अंदर जहां से कंजरी में एंट्री होती है, उतना लंबा तार आप 1 ग्राम गोल्ड से खींच के बना सकते हो। तो आप कितनी जो है उसकी मेलेबल डक्टाइल कैपेसिटी होगी वहां देख सकते होगे, अंडरस्टैंड कर सकते होगे। लेकिन हर एक मेटल ऐसा नहीं है। ओके, फिर सर्टेन मेटल लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज मेटल बट यू गेट इन लिक्विड फॉर्म। वो जो है आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आगे आप बात करो मेटल के बारे में तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
आप देखो जितने भी इंडस्ट्रीज के अंदर इलेक्ट्रिक वायर वगैरह बनते हैं, मोस्टली दे आर मेड फ्रॉम द मेटल ओनली, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आराम से उसमें से करंट फ्लो, उसके आयन इजीली मूव ऑन कर सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड ऑल। कॉपर इज द बेस्ट एग्जांपल, कॉपर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इवन गोल्ड एंड सिल्वर आर द गुड कंडक्टर ऑफ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बराबर है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। आपने देखा होगा स्टील है, क्रोमियम है, इन सब के बर्तन बनते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, फटाक करके गर्म होता है। इज इट क्लियर? तो इन सब चीजों के जो है बर्तन बनाए जाते हैं, और इन सब चीजों के वायर वगैरह बनाए जाते हैं, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये सब की सब जो है मेटल की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी में डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी आती है। इसके अलावा मेटल आर बेसिकली लस्टर इन नेचर। अगर आप अपर सरफेस को रब कर दो तो चमकते हैं, शाइन करते हैं। ओके, ठीक है। उसके अलावा इनमें रिंगिंग प्रॉपर्टी मिलती है, यानी मेटल को अगर आप जोर से पीटो तो उसमें से जो है बजने की आवाज आती है। तो क्या सब मेटल में आती? नहीं, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में मेटल को जो है डिवाइड किया गया है। तो ये तो जो है कुछ मेटल की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी द नॉन मेटल, बराबर है, जो टेबल के राइट साइड में इधर, बराबर है, जिसमें ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल दीज आर देयर। ओके, तो ये जितने भी है ना, तो इनमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मिलती है, ना मैलेबिलिटी मिलती है, ओके, ना इनमें जो है कंडक्टिविटी मिलती है। लेकिन एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट, कार्बन का एलोट्रॉप है, लेकिन उसकी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बराबर है। तो कुछ एक्सेप्शनल केस हर एक जगह पे होते हैं। यहाँ पर भी जो है गैलियम है, बराबर है, वो लिक्विड स्टेट में आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। हाँ, इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, दे आर ब्रिटल इन नेचर। इन गुजराती यानी हिंदी इट इज कॉल्ड द भंगुरता, यानी कि अगर आप उसको तोड़ो तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बराबर है। वो प्रॉपर्टी आपको मेटल में देखने को नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? एंड लाइक दैट वे नॉन मेटल्स आर डिफरेंट देन मेटल। इनमें डक्टिलिटी नहीं होती, मैलेबिलिटी नहीं होती है, कंडक्टिविटी नहीं होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, लस्टरिंग नहीं होती है, कुछ को छोड़कर, कुछ में लस्टरिंग होती है, बराबर है, वो अलग, वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। एंड सिमिलरली इनमें रिंगिंग भी नहीं होती है, साउंड प्रोड्यूस करते नहीं है, ओके। एंड सर्टेन मटेरियल्स आर देयर which are the link between metal and non-metal। इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती है, and they are called the मेटालाइट। अगर आप इस टेबल में यहाँ पे ये जिगजैग फॉर्म में देखा होगे, सिलिकॉन, गैलियम, स्कैंडियम, ये जो आपको ये ऐसे आ रहा है, ऐसे ही से ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, बराबर। ये पूरा का पूरा जो है ये जो हमें हाथ घूम रहा है यहाँ पे, दिस इज द मेटालाइट, बराबर। इनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी देखती है। ऑलमोस्ट इनके आउटर ऑर्बिट में ज्यादातर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इजीली किसी से केमिकल रिएक्शन कर भी सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। ड्यू टू दैट रीजन दे आर कंटेंट इन मेटालाइट, मींस दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, एंड दे आर कॉल्ड द मेटालाइट। इन गुजराती एंड हिंदी इट इज कॉल्ड धातु सदृश, मींस इनकी जो प्रॉपर्टीज है इट इज समथिंग मैच विथ द मेटल्स, मेटल से मिलती जुलती है। इज इट क्लियर? सो दिस मच वी विल ट्राई टू अंडरस्टूड टुडे। हम इतना समझने की कोशिश करेंगे, इतना हम समझेंगे, इसको अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे, बराबर। इसके अलावा हम लोग मेटल और नॉन मेटल की आगे अभी केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ओके, कि किस तरह से मोस्टली मेटल जो होते हैं दे आर द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके आउटर ऑर्बिट में ऑलमोस्ट 1, 2, 3 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं। दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस द पॉजिटिव आयंस, एंड उनके अगेंस्ट में जो नॉन मेटल हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, क्योंकि उनके आउटर ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले से नेगेटिव था और ज्यादा नेगेटिव होगा। जिसके आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है
बराबर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले से नेगेटिव था और ज्यादा नेगेटिव होगा, और जिसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, बराबर है, केमिकल रिएक्शन करने के लिए, बराबर है। तो मोस्टली मेटल आर द डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड नॉन मेटल्स आर द रिसीवर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने वाले होते हैं। Is it clear? So like this way, so many other properties are how mostly metal, when they chemical react with acid, they produce the hydrogen gas. Non-metal, almost they produce the hydroxide. Like that way, different properties we will going to study further. But today I explain you the physical properties of metal and non-metal. So refer it, दिमाग में रखना, इसको समझना, अंडरस्टैंड करना, ओके, और टेक्स्ट को जो है थोड़ा और प्रेफर करोगे, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया। ओके, बाय, सी यू।